everyone, welcome or welcome back to my channel. This is me Vanshika and I'm very excited for this video. Why? Because in this video I'm going to tell you my top 5 non-fiction books. So my favorite top 5 non-fictional books, and I'm very excited for this one because you can take this video as a recommendations video, book recommendation video or a book review video, because I'm going to tell everything about all these books, and these are my most favorite non-fiction. So let's start. And before jumping into the video, I just want to tell I really enjoy non-fiction as much as I enjoy fictional books. So these are that kind of book. And okay, let's start with the first book. So, among the top of the list is this one, The Monk Who Sold His Ferrari by Robin Sharma. I read this a year ago. One is the very first book I want to recommend you, and this is in the top of the list among all those 5 books. Why? Now, there is a story of a lawyer who just puts his luxurious life aside and just went to explore new life, the spiritual world. And there is a whole story like how he finds that liberation he wanted to, and how money can't give you that happiness. Read about the lawyer जो अपनी luxurious life को पूरी तरीके से छोड़ करके spiritual path में जाने की कोशिश करता है and liberation पाने की कोशिश करता है, and कैसे money can't buy happiness. This is something beautifully written in this book that if you want peace in your life, then luxurious life, money, fame, ये सब बिल्कुल भी attract नहीं करता. Peace is something जो कि you will feel inner self से अपने. So this book is totally about that, and everything like how that lawyer become a monk, and how not becoming monk is the ultimate reality to get into the peace and everything. And the small techniques जो कि उसे throughout उसके path में पता चलती हैं to get the peace, and how much he struggled before and how much he was relieved after getting that peace, that liberation. So this is something I really like. So this book is the very first book I want to recommend you, and that's pretty much about the review of this book. And you should start reading this book as soon as possible because I love this book. Now the second book in my list is this. Of course, सबने इस book को देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, and this is about Atomic Habit by James Clear. अगर अभी तक तुमने इस book को नहीं पढ़ा है, so you have to start. अगर तुम बहुत ज़्यादा procrastinate कर रहे हो, and if you are like what the hell I am doing with my life, then you should start reading this book. This will give you the clear indication that why habits matter and कैसे तुम अपनी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हो फ्रॉम स्मॉल स्टेप्स एंड एवरीथिंग. लाइक दिस इज रिटन ब्यूटिफुली. इसमें काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं, लॉज हैं, एंड उन लॉज को पढ़ के यू विल रियलाइज दैट अगर तुम इसे प्रैक्टिकलिटी में अपने सच में इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो कैसे तुम्हारी लाइफ एकदम 360 डिग्री एंगल से चेंज हो सकती है. बट या दिस विल टेक टाइम, एंड इसमें बहुत ही क्लियरली हर एक प्रोसेस को विथ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल्स बताया गया है. सो यू शुड स्टार्ट रीडिंग दिस बुक if you're procrastinating a lot and if you're not getting into the habits so fast. So I will definitely recommend you. So this one is the second in the list because like I read it 2 साल पहले, and still I like this book. Like कभी भी ऐसा होता है because there is a टाइम इन एवरी वंस लाइफ कि ऐसा फेज होता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेट करते हैं, हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं. देन आई जस्ट ओपन रैंडमली कोई सा भी पेज एंड जस्ट रीड इट एंड और अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स. सो आई थिंक यू शुड स्टार्ट रीडिंग दिस अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तुम्हें, और इफ यू वांट टू डेवलप न्यू गुड हैबिट्स, then this is the perfect one. Now the third, and I really like this book and I can't stop myself reading this. Like कभी भी अगर मुझे कोई बोलेगा इसको पढ़ने के लिए, तो आई एम ऑलवेज रेडी टू रीड दिस, एंड दिस वन इज दिस, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, एंड दिस इज बाय मार्क मेंशन. इट्स नॉट रिटन नेगेटिवली, इट्स अबाउट, इट्स दिस बुक मतलब तुम्हें बताती है कि अगर लाइफ में सब कुछ सही नहीं है तो भी सब कुछ ठीक है. इट्स ओके टू नॉट बी ओके, एंड दिस बुक एक्चुअली टेल्स यू अबाउट दैट. लाइक हमेशा हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती लाइफ में, एंड कैसे हमें अपने नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव वे में लेना चाहिए. इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज बीइंग पॉजिटिव एंड ऑलवेज सराउंडिंग योर सेल्फ विद द पॉजिटिव एनवायरमेंट. कैसे आप अगर नेगेटिव लूप में हो तो कैसे उससे बाहर निकल सकते हो, एंड लाइक इसमें बहुत ज़्यादा रियलिटी में फोकस किया गया है. दैट्स व्हाई आई रियली लाइक दिस बुक, क्योंकि कभी भी इस बुक को पढ़ते हुए यू वोंट फील लाइक कि ये प्रैक्टिकल नहीं है या फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो, बिकॉज दिस बुक इज़ जस्ट अमेजिंग. आई रेड इट बहुत मतलब 2-3 साल पहले, एंड आई स्टिल लव दिस बुक. जितना मैंने इसको पहली बार पढ़ा था उस टाइम और जितना अभी भी पढ़ती हूँ तो भी. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रियलिटी चेक, एंड कैसे आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो. सो ऑल दिस इज रिटन ब्यूटिफुल इन दिस बुक, एंड मार्क मेंशन लाइक हिज स्टाइल आई जस्ट लव. So yeah, this one is the next one, and the third one in the list. And now we have our fourth book, which is the same the by Mark Manson, Everything is Fucked Up. And again, this is not at all written in the negative way ki, like everything is so damn bad and nothing will work. It's not in that manner. It's like in a very pretty much positive way, like how you can take things in a positive manner even if they are not going in that direction as you wanted them to be, and how you
you are your own god, and how you can change your life. So this is something I really like. So although मैंने इस बुक को बहुत टाइम लेकर के कंप्लीट किया था, बिकॉज हाँ फॉर सम रीजन्स, बट आई रियली लाइक दिस बुक. सो ये नॉन फिक्शन में 4th नंबर में आएगी. एंड नाउ द लास्ट एंड फाइनल बुक is this one, The 5 AM Club by Robin Sharma. So actually I'm not a morning person at all, अभी भी नहीं है, even after reading this book. But जब मैं इस बुक को पढ़ रही थी, I tried a lot. So अगर तुम नहीं हो ना मॉर्निंग पर्सन, तो भी तुम इस बुक को पढ़ सकते हो, just to know the principles written in it, just to know the crisp of the book, because it will help you. It's like this book is all about कि तुम अपने स्टार्टिंग के जो आवर्स हैं उन्हें कितने अच्छे से प्रोडक्टिवली स्पेंड करोगे, तो तुम्हारा जो आगे का पूरा दिन है वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा. एंड हाउ मच इट अफेक्ट्स योर होल डे, लाइक द मॉर्निंग आवर्स अफेक्ट्स योर होल डे, एंड तुम्हें कितने प्रोडक्टिवली उन्हें स्पेंड करने चाहिए. 5 AM उठ करके कितना प्रोडक्टिव अपना डे तुम बना सकते हो. इट्स ऑल अबाउट दैट, लाइक डूइंग जर्नलिंग, योगा, मेडिटेशन एंड एवरीथिंग. इसमें बहुत सब कुछ बताया गया है. नॉट जस्ट दैट, आई एम लाइक गिविंग यू अ वेरी ब्रीफ summary of this book. But this book is something like, after reading it, I tried a lot to get up in the morning, like 5 AM नहीं तो 6 AM 7 AM, and I was able to do it जब तक मैंने इस बुक को ख़त्म नहीं किया. एंड उसके बाद कुछ रूटीन ऐसा होता है कि नहीं हो पाता, बिकॉज इवन लाइक इफ़ यू वांट तो भी नहीं हो पाता, और अगर तुम कॉलेज में हो तब तो और ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. सो इट्स लाइक, बट आई एम ट्राइंग नाउ अ डेज, एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. एंड जब भी मैंने इस बुक में जो भी लिखा है उसको फॉलो करने की कोशिश की है, सुबह उठ करके उसको मतलब पूरा इंप्लीमेंट करने की. सो आई फेल्ट कि हाँ लिटरली मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है, एंड उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है. सो इट्स नॉट लाइक बहुत कुछ किताबी बातें, इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें लिखी हुई हैं. एंड अगर तुम उसे फॉलो करोगे तो यू विल सी दी मैजिक, दी यू नो वॉट आई वॉन्ट टू से, कि सच में ऐसा होता है. सो इट्स जस्ट दैट इम्प्लीमेंटेशन. अगर तुम कुछ भी पढ़ रहे हो उसको पढ़ के छोड़ दोगे तो वो कभी भी तुम्हारी लाइफ में नहीं उतर पाएगा जब तक तुम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. तो इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन. एंड यही इस पूरी बुक में बताया गया है कि कैसे तुम्हारी मॉर्निंग्स विल चेंज योर होल लाइफ, योर नॉट ओनली योर डेज एंड दैट हैबिट. सो लाइक दिस बुक एंड दिस बुक इज़ प्रिटी मच सिमिलर, लाइक इन द सेम उसमें. सो तुम इन दोनों को साथ में भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें मुझे इसमें सिमिलर लगी. एंड या दीज वर द 5 बुक्स आई रियली वॉन्टेड टू रिकमेंड ईच वन ऑफ you. These are the top 5 नॉन फिक्शन बुक्स. एंड बहुत सारी मेरे पास हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों जब मैं चूज़ कर रही थी कि मेरी टॉप 5 कौन सी होंगी, तो मुझे यही 5 लगी, क्योंकि ऑल दी अदर बुक्स जो मैंने पढ़ी हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं की समरी मुझे लगती हैं. एंड ऐसा लगता है कि इसमें जो लिखा हुआ है ऑलरेडी वो उनमें वापस लिखा हुआ है. एंड इससे भी पहले मैंने काफ़ी सारी बुक्स रिकमेंड की हैं, लाइक द माउंटेन इज यू, ईट दैट फ्रॉग, लाइक इफ यू आर प्रोकास्टिनेटिंग अ लॉट. एंड ईट दैट फ्रॉग इज़ अ काइंड ऑफ बुक जो कि काफ़ी ज़्यादा थिन है, एंड उसका भी इम्प्लीमेंटेशन रियलिटी में अगर तुम करोगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प. बट अगेन ईट दैट फ्रॉग मुझे बहुत ज़्यादा इससे इंस्पायरिंग लगी, इसलिए मैंने उसको इस लिस्ट में ऐड नहीं किया है. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से, कि इन्हीं 5 बुक की अब मुझे पूरा समरी लगती हैं जो बाकी नॉन फिक्शंस में पढ़ती हूँ. तो इसीलिए मुझे अगर कभी भी ऐसा लगता है कि लाइक व्हाट इज हैपनिंग विथ मी एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग विथ मी एंड यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग, तो आई जस्ट ओपन जो भी मुझे बुक ये बुक इन बुक्स में लगता है ओपन करने के लिए, एंड I just open random page and read that, and you know that is something magical कि बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ने के बाद. And reading is something which I really enjoy. So of course these are my top 5 non-fiction books. And जैसे जैसे मैंने आपको बताया है from like first, second, third, fourth and fifth, you should start reading them. And हमेशा मेरी favorite तो The Monk Who Sold His Ferrari ही रहेगी. And there is also one book I want to tell you that like it's a more of a like novel, but in the same genre. So it's like The Alchemist. So you should also read this, you can read it. And that's pretty much about the video काफ़ी लंबा बन गया है. And यही मेरी top 5 non fiction की recommendation थी. And I love my books, and very soon I am going to give you a full बुक हॉल वीडियो, बिकॉज मैंने अभी अपनी सारी बुक्स को बहुत अच्छे से अरेंज किया है, उन्हें अच्छे से शेल्फ में रखा है. सो आई एम गोइंग टू मेक दैट वीडियो, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मेक दैट. एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट द वीडियो. एंड प्लीज स्टार्ट रीडिंग नॉन फिक्शंस टू. इफ़ यू आर वेरी मच इनटू फिक्शनल देन दैट्स गुड. बट कभी भी लाइफ में अगर स्टक लगता है एंड कुछ भी लगता है, सो लाइक आई पर्सनली थिंक कि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ ऐसे नॉन फिक्शंस होने चाहिए टू यू नो फील यू अपलिफ्टेड एंड मोटिवेटेड. एंड books are just magic. They can literally heal you. So that's what I wanted to say, and I am so much into non-fictions nowadays. And in the next video I will be giving you top 5 recommendations so from my side of non-fictions. So yeah, that's pretty much about the video. Thank you for watching, and please do subscribe to my channel. Bye.